Hello everyone, good morning to all. Let's start today's session with a short shlok. Join your hands, close your eyes. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा. Welcome back. This video lecture for class 8 subject science chapter number 2, that is microorganism, friends and foe. So dear students, as we know that the next month again third unit test will going to come. So according to the preparation for that, we are starting revision session, right? So chapter number 2, this will be asked as in unit test 3. The course will be provided to you by your class group, isn't it? So let's start chapter number 2, that is microorganisms, friends and foe. First of all, we will discuss the important facts of this chapter, as the chapter name is microorganism. So first you must know what is the microorganisms. The organisms that cannot be seen with naked eyes, isn't it? ऐसे जो भी ऑर्गेनिज्म है जो हम ओपन आँखों से नहीं देख सकते, राइट? जिसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की नीड पड़ती है. That is an instrument, right? And which is used to see microorganism, very small creatures which we cannot see, cannot be seen with naked eyes are called microorganisms, isn't it? Now, and what is the microscope? A microscope, here it is mentioned, a microscope is an instrument used for seeing objects or living organisms that are too small, isn't it? ऐसे जो भी microorganisms हैं ऐसे जो भी माइक्रोऑर्गेनिज्म जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है, दैट इज नेम्ड एज माइक्रोस्कोप, राइट? एंड दीज ऑर्गेनिजम्स आर टू स्मॉल टू व्यू विथ नेकेड आइज और इवन विथ अ मैग्नीफाइंग ग्लास. जिनको मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से भी नहीं देख पाते, उसको देखने के लिए हमें एक इंस्ट्रूमेंट की यूज़ करना पड़ता है, दैट इंस्ट्रूमेंट इज नेम्ड एज माइक्रोस्कोप. Next thing is the branch of science which deals with the study of microorganisms, right? The branch of science which deals with the study of microorganism, that means जो साइंस का जो पार्ट है, जो साइंस का फील्ड है जिसमें सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी की जाती है, दैट ब्रांच इज नोन एज माइक्रोबायोलॉजी. Okay, that branch is known as microbiology. Disease causing microorganisms are known as pathogens. ठीक है, जो भी माइक्रोऑर्गेनिज्म से रिलेटेड हमें डिजीज़ होती है, जो भी इन्फेक्शन होते हैं, जो भी कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है, दोज ऑल टाइप ऑफ डिजीज़ आर नेम्ड एज पैथोgens. Now this thing we know very well, that which are the communicable diseases, the diseases which are spread throughout the air, food and water or direct physical contact. इन सब के थ्रू, इन सारे सोर्सेज के थ्रू, इन सारे मीडिया के थ्रू जो हमारी बॉडी में डिजीजेस होती है, दैट ऑल टाइप्स ऑफ डिजीज़ आर नोन एज कम्युनिकेबल और इन्फेक्शन डिजीज़, राइट? इन्फेक्शन हम बोलते हैं ना कि हमें इन्फेक्शन हो गया है, तो दैट इन्फेक्शन कैन बी पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ एयर, फूड, सड़ा हुआ फूड खाने से, या एयर, इस टाइप की एयर जो हमारी बॉडी में जा रही है, जहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे पेशेंट हैं, उनकी बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है वो हमारी बॉडी में अगर एयर के थ्रू हमारी बॉडी में जा रहा है, तो सच टाइप ऑफ डिजीजेस कैन बी अकर in our body, and these type of diseases are known as communicable or infectious diseases, isn't it? Next, a biological compound which is injected or introduced orally into the body. A biological compound which is injected or introduced orally into our body of human beings.
to develop immunity against pathogen is called vaccine, isn't it? What is vaccine? That we know very well nowadays. The corona disease is spread too much, right? COVID-19 is spread already too much, और इसके कारण हमारी बॉडी में ये जो वीकनेस आ जाता है, हमें यहाँ हर जगह पे ये सुनने को मिल रहा है कि हमारा इम्यूनिटी अगर पावर अच्छा है तो हम डिजीज़ को फाइट इजीली कर सकते हैं. सो हमारी इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए जो ह्यूमन बॉडी में वैक्सीन इंजेक्ट की जाती है, और वी कैन से द बायोलॉजिकल कंपाउंड, दैट मीन्स सम कंपाउंड और केमिकल्स का मिक्सचर दैट इज़ नोन एज कंपाउंड, वो अगर हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, दैट एंड वो इंजेक्ट क्यों किया जा रहा है? टू इम्प्रूव आवर इम्यूनिटी पावर, टू डेवलप आवर इम्यूनिटी अगेंस्ट पैथोगन्स, राइट? पैथोगन्स मीन्स अगेन कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिजीजेस. उनको स्टॉप करने के लिए, हमारी बॉडी में उनसे फाइट करने के लिए जो इंजेक्ट किया जाता है, दैट इज़ नोन एज वैक्सीन, right? That is known as vaccine. Nowadays we are very much with by this factor, that is vaccine, because अभी तक हमें पता है कोरोना का कोई वैक्सीन नहीं आया है ना. एंड कोरोना का वैक्सीन हमारी बॉडी में क्यों इंजेक्ट करने के हम ट्राई कर रहे हैं? ताकि हमारा इम्यूनिटी डेवलप हो और हमारी बॉडी दैट विल बी एबल टू फाइट विथ कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिजीज विच इज स्प्रेड ऑलरेडी एवरीवेयर, राइट? Next point, that is antibiotic, right? So what is the antibiotic? Antibiotic are compounds which destroy or arrest the growth of pathogens. हमारी बॉडी में अभी एंटीबायोटिक दिए जा रहे हैं ना, बिकॉज एज वी नो वैक्सीन इज़ नॉट येट डेवलप्ड, वैक्सीन इज़ नॉट केम आउट इन द मार्केट. सो अब वैक्सीन के ऑप्शन में कुछ तो हमें लेना पड़ेगा ना. अभी हम जस्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं कोविड-19 का, बट जो ऐसी जो भी कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं जो एयर, फूड, वाटर और फिजिकल कॉन्टेक्ट से हो रही हैं, दैट ऑल आर नेम्ड एज कम्युनिकेबल. बट नाउअडेज जिस डिजीज़ को हम फेस कर रहे हैं ना, उसकी बात कर रहे हैं, तो अब हमें पता है कि जिसका वैक्सीन अभी तक नहीं आया तो उसको बॉडी उसके ऑप्शन में हमें कुछ तो लेना पड़ेगा, इजंट इट? सो व्हाट जनरली डॉक्टर यूज टू डू व्हेन एवर वी आर एडमिटेड फॉर ड्यू टू दिस कोविड कोरोना पॉजिटिव केस में हम क्या करते हैं, डॉक्टर्स क्या करते हैं? एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं हमारी बॉडी में, है ना. और एंटीबायोटिक्स क्या करेंगे? एंटीबायोटिक्स वर्क एज दे विल डिस्ट्रॉय और अरेस्ट द ग्रोथ ऑफ पैथोगन्स. दैट मीन्स दैट दे विल स्टॉप, they will avoid the growth of infectious disease which our body is already facing, right? So antibiotics उसको destroy करने का वर्क करेंगे. नेक्स्ट, अब अगर ऑलरेडी आई डिस्कस, अगर वैक्सीन हमारी बॉडी में आ गई है तो एंटीबायोटिक्स की कोई नीड ही नहीं है ना. बट इट इज़ हियर, एंटीबायोटिक्स इज़ हियर वर्किंग लाइक ऑप्शनल, है ना. वैक्सीन की जगह पे एंटीबायोटिक्स हमें डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं. Next, there is the important question of this chapter. There are 4 major groups of microorganisms, right? Generally, this question is asked in the exam. How many types of how many types of major groups of microorganisms? So we can say there is bacteria, fungi, algae, and protozoa. Which are these 4? You are able to see there are 4 major groups of microorganisms. First is bacteria, fungi, then algae and protozoa, isn't it? Next is methods like dehydration. Methods like dehydration, salting, deep freezing, aeration, canning, vacuum drying, etc. are used for preserving food. These all are the method to preserve food. You know the thing that nowadays lot on the grocery shop, lot of things came in and preserving tins, है ना. छोटे छोटे डिब्बों में कुछ टिन्स में पैक आता है जिस चीज़ों को हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं, जिस चीज़ को हम कभी भी और टाइम पे यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल हम वेजिटेबल्स की बात करें, पालक पनीर या मलाई मटर, ये जो सारी जो वेजिटेबल्स हैं ना, वो भी प्रिजर्व करके उसमें कुछ प्रिजर्व कंपाउंड मिक्स करके उनको डिहाइड्रेट या सॉल्टिंग या एनी अदर बाय एनी अदर मेथड्स दे आर प्रिजर्विंग, इजंट इट? एंड दीज प्रिजर्व्ड फूड बाय यूज्ड बाय वी पीपल ओनली, है ना. सो सेकेंड थिंग, सपोज वी टॉक अबाउट सॉल्टिंग, तो जैसे अचार वगैरह बनाया जाता है वो भी 1 ईयर तक हम रख सकते हैं. तो उसका रीज़न क्या है? उसको सॉल्टिंग और उसमें डीप
उसमें डीप ऑयल का काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी रखा जाता है ताकि वो ना बिगड़े। ऐसे ही कुछ ऐसी और भी फूड के आइटम्स हैं जिनको प्रिजर्व करने के लिए ये सारे मेथड्स फॉलो किए जाते हैं, लाइक डिहाइड्रेशन, सॉल्टिंग, डीप फ्रीजिंग, है ना। फ्रीजिंग के भी हमें फ्रोज़न आइटम बहुत सारे देखते हैं, लाइक स्माइली, फ्रेंच फ्राइज, ये सारी चीज़ें फ्रोज़न में फ्रीजिंग करके हम उसको लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं। सो वी कैन से दीज ऑल आर द मेथड्स टू प्रिजर्व द फूड, इजंट इट? सो दैट वी कैन प्रिजर्व द फूड फॉर 2 or 3 months स्टिल। उनकी वैलिडिटी, एक्सपायरी डेट भी नीचे लिखा होता है कि 6 मंथ इसकी वैलिडिटी है। दैट मीन्स वो 6 मंथ तक वो चीज़ जो उसमें केमिकल्स, जो कंपाउंड मिक्स किए गए हैं डिहाइड्रेशन और फूड को प्रिजर्व करने के लिए, वो 2 और 3 मंथ्स तक चल सकते हैं या 6 मंथ तक चल सकते हैं। दैट मीन्स 6 मंथ जैसे लिखा हुआ है तो एट दैट इसका मतलब हुआ 6 मंथ के बाद उसका जो प्रिजर्व का जो कंपाउंड, जो केमिकल उसमें मिक्स किए गए हैं वो पर्टिकुलर फूड को प्रिजर्व करने के लिए उसका इफेक्ट फिनिश हो जाएगा, उसका इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा, तो वो चीज़ प्रिजर्व देन विल नॉट बी नो लॉन्गर। Next is food preservation increases the storage period of food. So just now we talked about why we are used to preserve the food, to increase the storage period of food. That means उस food को हम काफ़ी टाइम तक रख सकें, isn't it? And that is make it transportation easy, जिसके कारण हमारा ट्रांसपोर्टेशन भी easy हो जाएगा। सपोज हम कुछ पर्टिकुलर थिंग्स को यहाँ से इम्पोर्ट कर रहे हैं, है ना, तो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करते टाइम हमें ये पता चल जाता है कि ये चीज़ अब कुछ दिनों तक रह सकती है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में हमें डिस्टेंस कवर करने में, उस चीज़ को पर्टिकुलर प्लेस पे पहुंचाने में टाइम लगेगा, है ना, तो ट्रांसपोर्टेशन भी इजी हो जाता है अगर हमारा फूड प्रिजर्व किया गया है। एंड इट हेल्प इन ऑब्टेनिंग ऑफ सीजन फूड मटेरियल्स, इजंट इट? जैसे सपोज वी कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ पीस, है ना, पीस खाते हैं ना, मटर, तो उनको भी प्रिजर्व करके उनके अंदर से पीस सीड्स निकाल के और बॉक्स में सॉल्टिंग करके, बॉइलिंग करके, उसको ड्राई करके फ्रीज़र में अगर हम रख देते हैं तो उसको भी, फ्रीज़र में रख देते हैं तो उसको भी हम लॉन्ग टाइम तक यूज़ कर सकते हैं, इजंट इट? बट द कंडीशन इज़ दैट पर्टिकुलर थिंग विच यू आर कीपिंग इन बाय फ्रोजन, दैट things, that object should be in air container, tight air container box में ही उसको पैक करके रख सकते हैं। सो वी कैन से द फूड प्रिजर्वेशन का क्या क्या है, कौन कौन से क्या क्या बेनिफिट्स हैं। इट इंक्रीज द स्टोरेज पीरियड ऑफ टाइम, फर्स्ट ये हो गया आपका, स्टोरेज पीरियड लॉन्ग हो जाएगा। सेकेंड थिंग, इट मेक्स द ट्रांसपोर्टेशन ईजीली उसका ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा, ईजीली ट्रांसपोर्टेशन करने में हेल्प रहेगा क्योंकि वो काफ़ी दिनों तक रह सकता है, तो ट्रांसपोर्टेशन ड्यूरिंग पीरियड में उसको बिगड़ने से वो स्टॉप कर देगा। एंड थर्ड इज ऑफ सीजन में भी उन चीज़ों का यूज़ हो सकता है, इजंट इट? ऑफ सीजन में भी उन सारी थिंग्स का यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट थिंग, bacteria can cause, here the point, bacteria can cause disease like tetanus, cholera and pneumonia, typhoid and tuberculosis in human beings, black rot in cabbage, fire blight in pears and anthrax in animal. These all are the name of the disease: black rot in cabbage, fire blight in pears and anthrax in animal. Generally such kind of diseases are seen in these fruits, vegetables and animals, isn't it? And so all these diseases are due to the bacteria. As we know, bacteria is a type of the microorganism, है ना, जो हमने 4 major group read किए थे, these 4 major groups of microorganisms. So there we talked about bacteria. So due to the bacteria, these such type of diseases can occur in human being, like cholera, pneumonia, typhoid, tuberculosis. These all are the diseases can occur in the human beings. But if we talk about the vegetables and fruits and animals are the also part of this disease, उनको भी ये टाइप की डिजीज़ बैक्टीरिया के रीज़न से, बैक्टीरिया की कॉज से डिजीजेस हो सकती है। सो हियर वी टॉक्ड अबाउट कैबेज, जैसे कि कैबेज में हमने बात की, कैबेज में ब्लैक रोट, फायर ब्लाइट हो सकती है पेयर्स में, एंड एंथ्रिक्स कैन बी डन इन एनिमल्स ड्यू टू ओनली बैक्टीरिया,
isn't it? So हम बता सकते हैं कि बैक्टीरिया के थ्रू कौन कौन सी डिजीज़ कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में हो सकती है. Secondly, the process of conserving of sugar into acid, the process of conserving of sugar into acid, alcohol or gas by the action of yeast. ठीक है, ईस्ट के थ्रू इन सारी शुगर को जो कन्वर्जन किया जाता है ईस्ट में, दैट प्रोसेस इज नोन एज फर्मेंटेशन. दैट प्रोसेस इज नोन एज फर्मेंटेशन. वेरी इंपॉर्टेंट, दिस क्वेश्चन इज जनरली आस्क्ड इन द कुछ एग्जाम फॉर 1 mark. The process of conserving of sugar into acid, alcohol or gas by the action of yeast is known as fermentation. Generally the question is asked, this yeast is used in the production of sugar. What will be the answer? Yeast is used in the production of sugar. Alcohol can be asked, hydrochloric acid can be, and oxygen can be. So here our answer should be yeast is used in the production of अल्कोहल. राइट, शुगर का कन्वर्जन किया जाता है बट अल्कोहल और एसिड का प्रोडक्शन किया जाता है. ओके, विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस ऑफ द यीस्ट वी कैन प्रोड्यूस अल्कोहल एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्मेंटेशन. राइट, next is the nitrogen fixation that we know very well. In first chapter we have done this topic. Nitrogen fixation is the process by which atmospheric nitrogen is fixed in the use of plant. Nitrogen fixation किसके लिए सबसे ज़्यादा beneficial है? It is used by the plant because we know the nitrogen is used by the nitrogen minerals. All the things are the captured by the soil, and soil will transport these all nitrogen and different minerals to the plants by different plant parts like xylem and phloem. उनकी हम बात कर चुके हैं. उनके थ्रू जो सारे different minerals हैं वो स्टेम के थ्रू, स्टेम में जो phloem और ये होते हैं उनकी हेल्प से सारे प्लांट्स के पार्ट तक ये सारी चीज़ें पहुंच पाती है. सो दैट थिंग वी नो वेरी वेल दैट प्लांट्स आर नाइट्रोजन को सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल किसका है? नाइट्रोजन फिक्सेशन इज़ द प्रोसेस बाय द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज़ फिक्स्ड फॉर द यूज़ ऑफ प्लांट. राइट, वाई दिस इज़ यूज, वाई इट इज़ फिक्स? इट इज़ फिक्स फॉर द यूज ऑफ प्लांट्स. एंड नेक्स्ट थिंग, द continuous circulation of nitrogen through the living and non-living compounds of biosphere is known as nitrogen cycle. Okay, that is known as nitrogen cycle. Okay, what is the nitrogen cycle? The continuous circulation of nitrogen. जो नाइट्रोजन का सर्कल चलता रहता है किसके ड्यूरिंग बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपाउंड्स में से ऑफ बायोस्फीयर इज नोन एज नाइट्रोजन cycle. Next thing is the nitrogen cycle includes nitrogen fixation. Okay, nitrogen fixation, then ammonification, then nitrification. So, okay, these all cycle nitrogen cycle में ये सारी चीज़ें include होती है. Nitrogen fixation, ammonification, nitrification, these all are included into nitrogen cycle. It maintains the percentage of nitrogen in the atmosphere. Atmosphere में कितना nitrogen का percentage है, that will be also depend by the nitrogen. Okay. So till here we have completed most of points of this chapter. We have covered most point of this chapter. In next video lecture we will discuss about frequently question. है ना, frequently question asked which are asked in generally asked in the exams like objective, NCERT. According to NCERT syllabus, objective and subjective questions we will discuss in next video lecture. Hope so you all have understood this main points. Okay, so we'll meet in next video lecture. Till that, take care. Goodbye.